Hello and welcome back to Story Underline. 216 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स 2024 को. आर्ट एंड कल्चर हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं नितिन सिंघानिया की. हमने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशिएंट और मैपिंग कर रखी है. प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप. नेक्स्ट, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई वुड लव टू नो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं. मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है. हमने अब तक के आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, साथ में इंडियन पेंटिंग्स एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कवर कर लिया है. इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन म्यूज़िक. सो इंडियन म्यूज़िक की बात करें, सो म्यूज़िक इज़ सोल ऑफ एनी कल्चर. नारद मुनि introduced art of music to earth. Sound that pervades whole universe is called Nad Brahma or Nada Brahma. Musical instruments, 7-holed flute जो हमको मिलता है IVC से. रावण हथा हमको मिलता है हेला सिविलाइजेशन ऑफ श्रीलंका से. रावण हथा एंड 7-holed flute. लिटरेरी ट्रेसेस की बात करें म्यूज़िक की, सो वैदिक टाइम्स में ऑल नोट्स ऑफ राग वेर कंपाइल्ड इनटू सामवेद. वीणा का मेंशन हमको देखने को मिलेगा ऐत्रेय अरण्यका में और अरण्यक. हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, इट इज स्टेम्ड फ्रॉम बीइंग प्लेड एट डिवोशनल साइट्स displayed in later Vedic period called Sangam period. Chanting of verses usually were set to musical pattern. Epics set to narrative type called Jatigan. First work on subject of musicology is Bharata's Natya Shastra, which talks about 22 keys recognized as Shruti or Shrutis. Sarangdev wrote Sangeet Ratnakar and Ramamatya wrote Swaramela Kalanidhi. Swaramela Kalanidhi. Swaramela Kalanidhi. सारंगदेव रोट संगीत रत्नाकार. गुरुकुल सिस्टम और आश्रम सिस्टम और हर्मिटेज सिस्टम भी इसे कहा जाता है, जहां गुरु शिक्षा ट्रेडिशन वॉज फॉलोड. हर्मिटेज फॉर 12 years वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन वॉज फॉलोड. हर्मिटेज का मतलब होता है सेक्लूडेड प्लेस फॉर हैबिटेशन और रेसिडेंस. हर्मिटेज का मतलब सेक्लूडेड प्लेस फॉर हैबिटेशन और रेसिडेंस. सो यहाँ गुरु शिक्षा ट्रेडिशन फॉलो की जाती थी. हर्मिटेज सिस्टम फॉर 12 years एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. विथ इन्फ्लक्स ऑफ इस्लामिक एंड पर्शियन एलिमेंट्स changed the face of North Indian music. Dhrupad style was evolved in 15th century, Khayal style in 17th, and furthermore folk singing emerged. Anatomy of Indian music. 3 main pillars हुआ करते थे: स्वर, ताल and राग. स्वर, ताल and राग. Swar means recitation of Veda. Over time, note or scale degree also evolved. Bharata's Natya Shastra divided swaras into 22 notes scale. 7 swaras together called saptak or sargam. Shruti was smallest gradation of pitch. 22 shrutis or microtones, out of which only 12 are audible. 22 shrutis में 12 are only audible. 7 swaras together called saptak or sargam. 22 notes scale. Bharata's Natya Shastra divided swaras into 22 notes scale. Recitation of Vedas का मतलब होता है स्वर. ताल की बात करें, it forms the basis of rhythm. It forms the basis of rhythm. Rhythmic grouping of beats. Tal is rhythmic grouping of beats. It is independent of music that accompanies it and has its own division. Tempo of tal is called lay. 30 tals are presently known and music composers usually use 3 tal having 16 beats. Carnatic music was rigid. हम आगे देखेंगे. Carnatic music was rigid and North India में scope for improvisation was more and Carnatic music was rigid or is rigid. Next is Thaat.
It is produced from 12 swars or notes. It is system of classification of rags in different groups. 10 थाट क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेंगी. The thought has no emotional quality. It is not sung, and rags produced from thought are sung. Rags produced from thought are sung. Only has aroha or ascending. Ragas produced from thought are sung. So अब देखते हैं हम थर्ड पिलर को, that is राग. स्वर और ताल हमने देखा. नेक्स्ट हम देखते हैं राग. फिर से हम रिवीजन करेंगे. संस्कृत वर्क रंज से निकाला गया है और डिराइव हुआ है राग. दैट मीन्स टू सेटिस्फाई अ पर्सन. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेलोडी. अगर आप यहाँ देखें तो स्वर इज रेसिटेशन ऑफ वेदास, ताल forms the basis of rhythm, and rag forms the basis of melody. So according to number of tones, three main categories or jatis exist: Udava rag and Shadava rag and Sampurna rag. 6 main rags under Hindustani music which are time and season specific. किसी एक सीजन में, किसी एक टाइम पे इन लोगों को परफॉर्म किया जाता है. They evoke particular type of emotion. Bhairav, that means dawn, it signifies peace. Hindol, morning में गाया जाएगा या morning में perform किया जाएगा. Deepak, night, that represents compassion. Megh, late night, that signifies courage. Shri, evening में perform किया जाएगा. And Malkush, midnight में. Bhairav, dawn, signifies peace. हिंडोल मॉर्निंग में, दीपक नाइट, मेघ लेट नाइट, श्री इवनिंग एंड मालकुश मिडनाइट. 3 मेन कैटेगरीज और जातीज: उडावा राग, शदावा एंड संपूर्ण राग. एवरी राग शुड हैव 4 बेसिक नोट्स: किंग और वादी, दैट इज प्रिंसिपल नोट, क्वीन और समवादी, नेक्स्ट इज अनुवादी, एंड फोर्थ इज विवादी. वादी, समवादी, अनुवादी एंड विवादी. डिवाइडेड इनटू 3 स्पीड और लय. हमने देखा था टेम्पो ऑफ ताल इज कॉल्ड लय. डिवाइडेड इनटू 3 स्पीड्स और लय: विलांबित, मध्य एंड ध्रुत. विलांबित इज स्लो, मध्य इज मीडियम एंड ध्रुत इज फास्ट. 3 मेजर टाइप्स ऑफ राग भेद: शुद्ध राग, चयालाग एंड संकीर्ण राग. शुद्ध राग, चयालाग एंड संकीर्ण राग. शुद्ध राग में इफ एनी नोट्स आर एब्सेंट, फॉर्म डज नॉट चेंज. एंड चयालाग में इफ एनी नोट्स आर एब्सेंट, नेचर एंड फॉर्म चेंजेस. संकीर्ण राग में इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. समय: ईच राग हैज अ स्पेसिफिक टाइम एट विच इट इज परफॉर्म्ड. 12 AM से 12 PM तक के पूर्व राग, एंड 12 PM to 12 AM उत्तरा राग, पूर्व राग एंड उत्तरा राग. अरोहा हम देख रहे थे, हमने एक जगह अरोहा पढ़ा है, ओनली हैज अरोहा. थाट, थाट ओनली हैज अरोहा. सो जानते हैं अरोहा और अवरोहा का मतलब. अरोहा मीन्स व्हेन ईच नोट इज हायर देन प्रीसीडिंग नोट्स लाइक सा, रे, गा, मा. एंड अवरोहा इज डिसेंट और डिसेंडिंग ऑर्डर में, नी, धा, पा, मा, गा, रे. नेक्स्ट इज राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड अलाप. राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड अलाप. आपको पता होगा, आपने सुना होगा, कई कई गानों का शुरुआत अलाप से की जाती है. फास्ट टेम्पो इज कॉल्ड तान. राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड अलाप एंड फास्ट टेम्पो इज कॉल्ड तान. अलंकार. अलंकार इज a specific melodic presentation. It is combination of sa, re, ga, ma. Alankar is a specific melodic presentation. Has aroha and avaroha. हम अभी बात कर रहे हैं राग की, right? Rag which forms the basis of melody. So has aroha and avaroha, both ascending and descending. Have vadi and samvadi. ये क्या थे? वादी एंड सामवादी वेयर प्रिंसिपल नोट्स. हमने देखा था 4 बेसिक नोट्स: वादी, सामवादी, अनुवादी एंड विवादी. फाइन. नेक्स्ट, नेम्ड आफ्टर इमोशंस दे इवोक. दे आर नेम्ड आफ्टर इमोशंस दे इवोक. हैव वादी एंड सामवादी, अरोहा एंड अवरोहा.
Alankar is specific melodic presentation which is combination of sa re ga ma. Fast tempo is called taan, slow tempo is called alap. Avaroha is descending order में नी धा पा मा गा रे एंड अवरोहा इज सा रे गा मा. सो अब तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Indian music. Music is soul of any culture. Narad Muni introduced art of music to earth. Sound that pervades whole universe is called Nad Brahma. And musical instrument 7-holed flute जो हमको मिलता है IVC से and रावण हटा मिलता है हेला civilization of श्रीलंका से. Literary evidences की बात करें so Vedic times में all 7 notes of rags were compiled into Samved and Veena is discovered or mentioned in Aitreya Aranyaka. History of Indian music. It is stemmed from devotional side displayed in later Vedic period called Sangam period. Chanting of verses were usually set into musical patterns. Epics set to narrative type is called Jatigan. First work on subject of musicology, Bharata's Natya Shastra, which talks about 22 keys recognized as Shruti or Shruti. Sarang Dev wrote Sangeet Ratnakar and Ramamatya wrote Swar Mela Kalanidhi. The hermitage is a secluded place of residence or habitation ठीक है. hermitage system. गुरु शिक्षा ट्रेडिशन यहाँ फॉलो करते हुआ जाता था और 12 years के लिए. No discrimination. Influx of Islamic and Persian element led to the changes in North Indian music. Dhrupad style 15th century, Khayal style 17th, and furthermore folk singing emerged or evolved. Anatomy of Indian music. 3 main pillars हैं Indian music के स्वर, ताल and राग. स्वर, ताल and राग. Swar means recitation of Vedas, Tal forms the basis of rhythm and Rag forms the basis of melody. Swar. Over time, notes or scale degree also evolved. Bharata's Natya Shastra divided swars into 22 notes scale. 7 swars together are called Saptak or Sargam and Shruti is the smallest gradation of pitch. 22 Shrutis में और microtones से सिर्फ 12 are audible. 22 Shrutis में only 12 are audible. Next, Tal, which forms the basis of rhythm. It is rhythmic grouping of beats. It is independent of music that accompanies it and has its own division. Tempo of Tal is called Lay and 30 Tal presently known है. Music composers usually use 3 Tal having 16 beats. Carnatic music is rigid and North India में हमको देखने को मिलेगा areas of improvisation. Next, Thaat produced from 12 swars or notes. System of classification of rags in different groups हमको देखने को मिलेंगे. 10 Thaat classification है. Thaat में हमको मिलेगा no emotional quality. It is not sung. Rags produced from Thaat are sung. It only has aroha. हम देखेंगे rag has both descending and ascending roha and avaroha. They don't have vadi or samvadi that are 3 और 4 बेसिक नोट्स हमने देखे थे. 4 बेसिक नोट्स वादी, समवादी, अनुवादी एंड विवादी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड पिलर की जो है राग. इट इज derived फ्रॉम संस्कृत वर्ड रंज दैट मीन्स टू सेटिस्फाई अ पर्सन. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेलोडी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टोन्स. 3 मेन कैटेगरीज और जातीज ओडावा राग, Shadava and Sampurna. 6 main rags under Hindustani music which are time and season specific which evoke particular type of emotion. Bhairav, dawn, signifies peace. Second is Hindal which is sung in morning. Deepak, night, signifies compassion. Megh, late night, signifies courage. Shri at evening and Malkush at midnight. Every rag should have 4 basic notes. King or Vadi, that is principal note. Queen or Samvadi. Next is Anuvadi and Vivadi, divided into 3 speed or lay, Vilambit, Madhya and Dhrut. 3 major types of rag bhed, Shuddha, Chayalag and Sankirna. Shuddha, Chayalag and Sankirna. If any notes are absent, form does not change in Shraddha rag. Shuddha rag. Chayalag mein, if notes are absent, form and nature changes. And Sankirna rag is combination of both. Samay or each rag has a specific time at which it is performed. 12 am to 12 pm Purva rag and 12 pm to 12 am Uttara rag. Next is Aroha and Avaroha हमने देखा. Aroha when each note is higher than preceding
when each note is higher than preceding, sa re ga ma. Avaroha descending, ni dha pa re ga re sa, जो भी है. राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड अलाप, फास्ट टेम्पो में इसको कहा जाता है ताल. एंड अलंकार इज स्पेसिफिक मेलोडिक प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सा रे गा मा. हैज अवरोहा, राग की बात चल रही है. राग हैज आरोहा एंड अवरोहा, हैव वादी एंड समवादी. इट इज नेम्ड आफ्टर इमोशन दे इवोक. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं. सम आर क्लोजर टू क्लासिकल बेंट एंड सम आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ग्लोबल म्यूजिक. Recent trend to create fusion music is pop and jazz. Classical music. Historical root Bharata's Natya Shastra diverged in 14th century. हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक हम बात करेंगे. और किसकी बात, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक का डिफरेंस भी हम देखेंगे. हिंदुस्तानी डिवाइडेड है क्लासिकल स्टाइल में और सेमी क्लासिकल स्टाइल में. क्लासिकल म्यूजिक इट फोकसेस मोर ऑन म्यूजिकल स्ट्रक्चर. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. जैसा कि पहले मैंने बताया था, कार्नेटिक म्यूजिक में हमको इम्प्रोवाइजेशन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज मोर रिजिड है. और हमको क्लासिकल स्टाइल और हिंदुस्तानी स्टाइल में हमको मिलेगा पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. क्लासिकल स्टाइल एडॉप्टेड स्केल ऑफ शुद्ध स्वर सप्तक और ऑक्टेव ऑफ नेचुरल टोन्स. मेन स्टाइल ऑफ सिंगिंग ध्रुपद, धमर, ख्याल, सरगम एंड ठुमरी. मेन स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग ध्रुपद, धमर, ख्याल, सरगम एंड ठुमरी. ध्रुपद की बात करते हैं. सो ध्रुपद इज ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ध्रुपद ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट. जेनिथ पे था ड्यूरिंग रेन ऑफ अकबर हु पेट्रोनाइज्ड बाबा गोपाल दास, हरिदास एंड तानसेन. पेट्रोनाइज्ड बाबा गोपाल दास, हरिदास एंड तानसेन. अकबर, इसके टाइम पे ध्रुपद was at zenith, सबसे पीक पे अपने चल रहा था. Drupad became major form during medieval period. It declined in 18th century with coming of Europeans. Essentially poetic form marked by precise and overt elaboration of rag. Drupad is of temple origin, used Sanskrit. It starts with alap, sung without words. And major घरानाज are डोगरी, धरभंगा, बेतिया एंड तालवंडी. नेक्स्ट बात करते हैं ख्याल की. इसको बंदिश भी कहा जाता है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन आइडिया और दैट मीन्स आइडिया और इमेजिनेशन. ख्याल ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू आमिर खुसरो. अभी हम इसके 2-3 जगह और नाम सुनेंगे तो इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है. ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू आमिर खुसरो. ख्याल और बंदिश स्टाइल. यूनिक फीचर है इसका फ्रीक्वेंट यूज ऑफ तान्स. अलाप गिवन लेस रूम. दे यूज 2 सॉन्ग्स. बड़ा ख्याल that is of slow tempo and छोटा ख्याल that is of fast tempo. It is romantic in nature. Major घरानाज are ग्वालियर, किराना, आगरा एंड पटियाला. सो हमने ध्रुपद देखा, ख्याल देखा. नेक्स्ट तरानाज rhythm plays very crucial role. They are sung at fast tempo invented by Khusro. Used by Sikh Guru Gobind Singh. So हमने देखा क्लासिकल स्टाइल्स जिसके हमने देखे मेन स्टाइल्स ध्रुपद, ख्याल एंड तराना. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हिंदुस्तानी स्टाइल का इज सेमी क्लासिकल स्टाइल्स. दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन स्वर और नोट. लाइटर वर्जन ऑफ राग लाइक भूपाली और मालकुश आर यूज्ड. लाइटर वर्जन ऑफ ताल एंड यूज ऑफ मध्यम लय. 3 लय हमने देखा था, विलाम्बित, मध्य एंड ध्रुत. ठीक है. सो हम कहाँ थे? लाइटर वर्जन ऑफ ताल एंड यूज ऑफ मध्यम लय. प्रोमिनेंट स्टाइल्स इंक्लूड ठुमरी, ठप तप ठप्पा, थप्पा एंड गजल. ठीक है. ठुमरी बेस्ड ऑन मिक्स्ड राग्स, रोमांटिक और डिवोशनल हुआ करते थे ठुमरी एंड इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना. भक्ति मूवमेंट एंड दे वर डिवोशनल. टेक्स्ट रिवॉल्व्स अराउंड गर्ल्स लव फॉर कृष्ण. जस्ट अ सेकेंड. Based on mixed rags, Thumri is based on mixed rags, romantic or devotional, inspired by Bhakti movement.
Text revolves around girls' love for Krishna, sung in female voice, allows improvisation and therefore greater flexibility. Linked to classical Kathak dance. It is linked to classical Kathak dance. आगे हम देखेंगे. Main घरानास वाराणसी and Lucknow. वाराणसी and Lucknow. Begum Akhtar and Girija Devi, prominent figures. Begum Akhtar and Girija Devi. Tappa. Rhythm plays very important role in Tappa. Originated from camel rides of northwest India. Tappa originated from camel rides of northwest India. They gained legitimacy in Mughal court of Muhammad Shah. Lakshman Rao Pandit of Gwalior is prominent figure representing Tappa. गजल, फिर से आमिर खुसरो का नाम अभी तक हमने 3 बार पढ़ लिया है. ख्याल origin is attributed to Amir Khusro. Tarana invented by Khusro, and Ghazal. Amir Khusro is one of the expounder of art of making ghazal. Ghazals are poetic form that consist of rhythmic couplets, poetic expression of both pain of loss and beauty in spite of that pain. Ghazal originated in Iran. It never exceeds 12 ashas or couplets. It is spread to South Asia due to influence of Sufi mystics. Amir Khusro, who was one of the expounder of art of making ghazals. Muhammad Iqbal Khan and Mirza Ghalib are other prominent figures. So, हमने देख लिया है हिंदुस्तानी, जिसमें हमने देखा classical style and semi-classical style. Classical style focuses more on musical structure. There is possibility of improvisation. It adopted scale of Shuddh Swar Saptak or octave of natural tones. Main styles of singing: Dhrupad, Dhamar, Khayal, Sargam and Thumri. So याद रखें ये सब क्लासिकल स्टाइल के अंडर आते हैं. ध्रुपद ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट हमने देखा. जेनिथ गया अकबर के टाइम पे. became major form during medieval period, declined in 18th century, essentially poetic form marked by precise and overt elaboration of rag. Origin इसका temple origin है and use of Sanskrit. Temple origin Sanskrit relate कर ही सकते हैं. It starts with alap, that is sung without words. Major घरानास डोगरी, दरभंगा, बेटिया and तालवंडी. फिर हमने देखा ख्याल और बंदिश. इसको ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू आमिर खुसरो. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन, दैट मीन्स ख्याल, दैट मीन्स आइडिया और इमेजिनेशन. इसका यूनिक फीचर है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ तान्स एंड देयरफॉर अलाप इज गिवन लेस रूम. They use 2 songs, Bada Khayal that is of slow tempo and Chota Khayal that is of fast tempo. They are romantic in nature. याद रखिए ख्याल एंड बंदिश आर रोमांटिक इन नेचर. मेजर घरानाज इसके हैं ग्वालियर, किराना, आगरा एंड पटियाला. नेक्स्ट हमने देखा तराना स्टाइल. ये हम पढ़ रहे हैं अंडर क्लासिकल. Rhythm plays very crucial role in taran or tarana, sung at fast tempo and invented by Khusro, used by Sikh Guru Gobind Singh. Next हम बात करते हैं सेमी क्लासिकल स्टाइल की. ऑल्सो बेस्ड ऑन स्वर और नोट. लाइटर वर्जन ऑफ लाग लाइक भूपाली और मालकुश आर यूज्ड. इट इज लाइटर वर्जन ऑफ ताल एंड यूज ऑफ मध्यम लय. प्रोमिनेंट स्टाइल्स इंक्लूड थुमरी, टप्पा एंड गजल. Tumri is based on mixed rags, romantic or devotional, inspired by Bhakti movement. ये important है. It was inspired by Bhakti movement. Text revolves around girls' love for Krishna. It is sung in female voice. It allows for improvisation and therefore it has greater flexibility. It is linked to classical Kathak dance. Main घरानाज इसके हैं वाराणसी and Lucknow. Begum Akhtar and Girija Devi are prominent figures representing Thumri. Thappa. Rhythm plays very important role here. It originated during camel rides of northwest India. अब camel rides के टाइम पे हो सकता है इसे गाया जाता होगा. So इसका origin वहीं से है. It gained legitimacy in Mughal court of Muhammad Shah. Lakshman Rao Pandit of Gwalior is prominent figure. Ghazal are poetic form that consist of rhyming couplets. Poetic expression of both pain of loss and beauty in spite of that pain. It originated in Iran and it never exceeds 12 ashas or couplets.
spread to South Asia due to influence of Sufi mystics. Amir Khusro is one of the expounder of art of making ghazal. Muhammad Iqbal Khan and Mirza Ghalib are other prominent figures. नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कार्नेटिक म्यूजिक की. इट इज प्लेड इन ट्रेडिशनल ऑक्टेव. प्लेड इन ट्रेडिशनल ऑक्टेव. म्यूजिक इज कृति बेस्ड and focuses more on साहित्य और lyric quality. Music is kriti based and focuses more on साहित्य और lyric quality. Parts of Carnatic music: Pallavi, Anupallavi and Charana. Pallavi is thematic line repeated in each stanza and it has great scope for improvisation. Pallavi याद रखें has great scope for improvisation and Anupallavi is two lines that follow Pallavi, then Anuvadi and then Charana. Charana is final and longest verse and it concludes the song. Pallavi, Anupallavi and then Charana. Proponents of Carnatic music: Namacharya, Purandara Dasa and Kshatriya. Namacharya, Purandar Das and Kshatriya. हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक के बीच डिफरेंसेस देख लेते हैं. सो हिंदुस्तानी हैज अरब, पर्शियन एंड अफगान इन्फ्लुएंस. कार्नेटिक में हमको देखने को मिलेगा इट इज इंडिजीनस. देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन एंड कार्नेटिक में हमको पता ही है देयर इज लेस स्कोप. सेवरल सब स्टाइल्स भी हैं हिंदुस्तानी में जो हमने देख लिए. इट इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग. कार्नेटिक इज अ पर्टिकुलर स्टाइल, इसलिए इसे रिजिड भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ लेस स्कोप है फॉर इम्प्रोवाइजेशन. इंस्ट्रूमेंट्स प्लेज इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल. कार्नेटिक में हमको देखने को मिलेगा देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन वोकल म्यूजिक. नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन राग्स. कार्नेटिक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन ताल. तबला, सितार एंड इसके यहाँ पर भी सितार ही लिखा है. तबला एंड सितार. कार्नेटिक में मेजर इंस्ट्रूमेंट्स आर वीणा, मंडोलिन एंड मृदंगम. वीणा, मैंडोलिन एंड मृदंगम. साउथ इंडिया में कार्नेटिक हमको देखने को मिलेगा. याद रखें हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक में, कार्नेटिक स्टाइल में हमको कॉमन देखने को मिलेगा फ्लूट एंड वायलिन. ये दोनों में ही कॉमन है फ्लूट एंड वायलिन का यूज. तो अब तक हमने कवर कर लिया है एनाटॉमी. 3 मेन पिलर्स हमने देख लिए: स्वर, ताल, राग. अवरोहा, अरोहा, अवरोहा एंड अरोहा. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक हमने देख लिया. क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी और कार्नेटिक में डिवाइड है, वेयर का हिंदुस्तानी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासिकल स्टाइल्स एंड सेमी क्लासिकल. क्लासिकल में हमको देखने को मिलेगा ध्रुपद, ख्याल एंड तराना. सेमी क्लासिकल में ठुमरी, ठप्पा एंड गज़ल. कार्नेटिक जो हमने देखा एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग है. इसके पार्ट्स हमने देखे पल्लवी, अनुपल्लवी एंड चराना. प्रोपोनेंट्स इसके हमने देख लिए. म्यूजिक इज कृति बेस्ड एंड फोकसेस मोर ऑन साहित्य और लिरिक क्वालिटी, आप याद रख लें. फोक म्यूजिक की बात करते हैं. फोक म्यूजिक, फिर हम देखेंगे फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक. सो फोक म्यूजिक और फोक ट्रेडिशन इज म्यूजिक ऑफ पीपल एंड हैज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. मेनली डांस ओरिएंटेड रहते हैं, इसलिए दे आर सेट ऑन बीट्स. They are dance oriented. They are based on diverse themes. They are full of musical rhythms. शुरू करते हैं बॉल से. Lyric carry influence of Hindu Bhakti and Sufi movement. It represents long heritage of preaching mysticism. Ball belong to either Vaishnav Hindu or Sufi Muslim sect. Yotin Das and Lalon Fakir are major prominent figures representing Ball. Vanavan JNK में फेमस है. वेडिंग के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट इज पंडावानी. इट इज बेस्ड ऑन ग्रैंड एपिक महाभारत एंड भीमा एज हीरो. तीजन बाई फ्रॉम छत्तीसगढ़, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी मिल चुका है. तीजन बाई फ्रॉम छत्तीसगढ़. अल्हा एमपी का फोक सॉन्ग है. इट इज रिलेटेड टू एपिक महाभारत. 2 देख लिए विच आर रिलेटेड टू एपिक महाभारत, पंडवानी एंड अल्हा. नेक्स्ट इज पानीहारी. राजस्थान में पानी आप कर याद रख सकते हैं. पानी मतलब रिलेटेड टू वाटर. अबाउट वुमेन फेचिंग वाटर इन मटकाज ओवरहेड. पानीहारी रिलेटेड टू वाटर, राजस्थान. ओवी
महाराष्ट्र एंड गोवा का फोक सॉन्ग है. इट इज संग बाय वुमेन इन लीजर टाइम. पाई सॉन्ग एमपी, संग ड्यूरिंग फेस्टिवल, मेनली रेनी सीजन. गुड मॉनसून और गुड हार्वेस्ट के लिए सैरा डांस के साथ पाई सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है. लावनी महाराष्ट्र में है. इट इज परफॉर्म्ड यूजुअली ऑन बीट्स ऑफ ढोलकी विच इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट. पावरफुल रिदम, लावनी में हमको देखने को मिलेगा. पावरफुल रिदम महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट इज मंद, राजस्थान में फेमस है. इट ग्लोरीफाइज द ग्लोरी ऑफ राजपूत रूलर्स. मंद राजस्थान, ग्लोरी ऑफ राजपूत रूलर्स. डांडिया गुजरात, ये तो पता ही होगा. इट इज एसोसिएटेड विद सीन्स ऑफ होली एंड लीला ऑफ कृष्ण. डांस ऑफ नवरात्रि इवनिंग इन वेस्टर्न इंडिया, अभी चल ही रहा है. कोई मैं से पूछता है तो मैं तो दूर से ही नमस्कार बोल देता हूँ. डांडिया करने चलोगे? नहीं भाई. नेक्स्ट इज पोवड़ा, महाराष्ट्र में फेमस है. संग फॉर हीरोज इनली शिवाजी. खोंगजोम परबा, खोंगजोम परबा, मणिपुर. इट इज म्यूजिकल नरेशन ऑफ बैटल ऑफ खोंगजोम बिटवीन ब्रिटिश एंड मणिपुर. नेक्स्ट इज भावगीत, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. इट इज क्लोज टू गजल्स, sung on slower pitch. मंडो गोवा में है. ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशन. मंडो गोवा, ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशन. कोलानालू और कोलाट्टम आंध्र प्रदेश, सिमिलर टू डांडिया और स्टिक डांस. कोलानालू और कोलाट्टम. अदर्स आर सोहार, बिहार में देखने को मिलेगा. इट इज संग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जिकीर असम. बसंत गीत उत्तराखंड में, हार्वेस्ट सॉन्ग ही है. बोरगीत असम में एंड झूरी हिमाचल प्रदेश. सो एक बार फिर से सारे फोक सॉन्ग्स हम लोग, फोक म्यूजिक हम लोग देखते हैं. इट इज म्यूजिक ऑफ पीपल, इट इज डांस ओरिएंटेड. बॉल लिरिक कैरी इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट. रिप्रेजेंट्स लॉन्ग हेरिटेज ऑफ प्रीचिंग मिस्टिसिज्म. इट बिलोंग टू इधर वैष्णवा, हिंदू और सूफी मुस्लिम सेक्ट. योतिन दास एंड ललोन फकीर. वनावन JNK, sung during wedding. Andwani, it is based on grand epic Mahabharat and Bhim as hero. Ijanbai from Chhattisgarh, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण मिल चुका है. अल्हा MP में है, related to epic महाभारत. अनिहारी राजस्थान, related to water. OV महाराष्ट्र and Goa, sung by women in leisure time. Pai song of Madhya Pradesh, sung during festivals, rainy season, good monsoon and for good harvest. The farmer community performed Sera dance in Pai song. Lavani, Maharashtra, performed usually on beats of dholki, which is percussion instrument. It has powerful rhythm. Lavani has powerful rhythm. Mand, Rajasthan, which glorifies glory of Rajput rulers. Dandiya, Gujarat, associated with scenes of holy, Leela of Krishna, dance, Navratri. Paoda, Maharashtra, sung for heroes, Shivaji, है ना. खोंगजोम परबा मणिपुर में है. म्यूजिकल नरेशन ऑफ बैटल ऑफ खोंगजोम बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मणिपुर. भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र में. इट इज क्लोज टू और क्लोजर टू गजल्स, संग ऑन स्लोअर पिच. मंडो गोवा. इट इज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस. कोलानालू और कोलट्टम आंध्र प्रदेश, सिमिलर टू डांडिया और स्टिक डांस. अदर्स सोहर बिहार में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जिकीर असम. बसंत गीत उत्तराखंड. बोरगीत असम में एंड झूरी हिमाचल प्रदेश. फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसको देखने से पहले हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं. अवनाद, दे आर मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट. परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, वी हैव टू स्ट्राइक देम. एग्जाम्पल्स लाइक तबला, ड्रम, ढोल, कॉन्गो, मृदंगम, अर्थ ड्रम्स. दे आर 1 or 2 फेसेस कवर्ड विथ स्किन. 2 फेसेस वाले भी होते हैं, 1 फेस वाला भी होता है. ठीक है. अवनाद मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन होता है. सुशीरा आर एरोफोन्स, दे आर विंड इंस्ट्रूमेंट्स. सुशीरा एरोफोन्स, एयर विंड इंस्ट्रूमेंट. बांसुरी, शहनाई, पुंगी, फ्लूट एंड निनकिन्स. शहनाई किंग इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड फेमस फ्लूटिस्ट हैं पंडित हरिप्रसाद. घना, दे आर नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, मंजीरा, जल तरंग, घुंघरू एंड करताल. मंजीरा इज एज ओल्ड एज IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसका टाइम पीरियड इज 2500 BC to 2700. ठीक है. तटवाद्य,
और टटावाद्य, कॉर्डोफोन्स, दीज आर कॉर्डोफोन्स और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग गिटार. Bowed ones are drawing bow across strings, example is violin. Plectral strings are plucked by fingers, example like sitar, guitar and tanpura. Struck by small hammer or stick, swaramandal and gotuvadyam. Veena is most ancient and revered instrument, belong to goddess Saraswati. मॉडर्न डेवलपमेंट्स, इसके बाद तो हमने देख लिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. मेम्ब्रेनोफोन, जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा. सुशीरा आर एरोफोन्स, मतलब एयर. बांसुरी, शहनाई, पुंगी. घना, आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट, दे आर नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मंजीरा, जल तरंग, घुंघरू एंड करताल. मंजीरा इज एज ओल्ड एज IVC. तटवाद्य, these are chordophones, these which means string, chord लगे होते हैं. बोर्ड में drawing bow across strings, example is violin. Plectral में strings are plucked by fingers, example like sitar, guitar and tanpura. Struck by small hammer or sticks, swaramandal and gotuvadyam. Veena is most ancient and revered instrument which belongs to goddess Saraswati. So हम थे folk music instruments में. So आपको ये याद करना होगा फोक म्यूजिक के अंडर में कॉर्डोफोन्स कौन से हैं, एरोफोन्स कौन से हैं, मेम्ब्रेनोफोन्स एंड आइडियोफोन्स. एक बार याद कर लो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही याद रखेगा कोई. कॉर्डोफोन्स, टुम्बी पंजाब, टुनटुना, दोटारा, चिकारा एंड दिलरुबा एंड सारिंडा. चिकारा आपको पता होगा राजस्थान में चिंकारा विच इज स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान. तो इससे आप चिकारा भी याद रख सकते हैं. तो चिकारा यूपी में, राजस्थान में एंड MP में हमको देखने को मिलेगा. दिलरुबा पंजाब में है, टुम्बी भी पंजाब में है. टुनटुना बाय वॉन्डरिंग मॉन्क्स, इट वॉज संग बाय वॉन्डरिंग मॉन्क्स. डोटारा बाय बॉल्स हमने एक और जगह देखा था. बॉल एक टाइप का फोक म्यूजिक है. लिरिक कैरी इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, रिप्रेजेंट लॉन्ग हेरिटेज ऑफ प्रीचिंग मिस्टिसिज्म, बिलोंग टू ईदर वैष्णवा हिंदू और मुस्लिम सूफी मुस्लिम सेक्ट. सो टुम्बी पंजाब, टुनटुना बाय वॉन्डरिंग मॉन्क्स, डोटारा बाय बॉल्स, चिंकारा रिलेट करते जाना. दिलरुबा पंजाब एंड सरिंदा संथाल्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड राजस्थान. सरिंडा बाय संथाल्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड इन राजस्थान. एरोफोन्स हमने देखे, दीज आर विंड इंस्ट्रूमेंट्स. एयर से आपको याद करना पड़ेगा. पुंगी, अलगोजा एक नया टर्म है, इसको आपको याद रखना है. ठंगमुरी, टिट्टी, मशाक एंड गोगोना. मेम्ब्रेनोफोन्स, घुमोत, इदक्का, उड़ुकाई, संभाल, तमाक एंड डिग्गी. आइडियोफोन्स, चिमटा यही है क्या, है ना, चिमटा, घरहा एंड अंडेलू. कॉर्डोफोन्स, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का. कॉर्डोफोन्स, तुम्बी पंजाब, टुनटुना बाय वॉन्डरिंग मॉन्क्स, डोटारा बाय बॉल्स, चिंकारा राजस्थान, यूपी, MP, दिलरुबा पंजाब, सरिंडा संथाल्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड राजस्थान. एरोफोन्स, विंड इंस्ट्रूमेंट. पुंगी, अलगोजा, टंगमुरी, टिट्टी, मशाक एंड गोगोना. मेम्ब्रेनोफोन जिसके में मेम्ब्रेन होता है, वन साइडेड भी होते हैं, टू साइडेड भी होते हैं, टू फेस भी, वन फेस भी. घुमोत, इदक्का, उदुकाई, संभाल, तमाक एंड डिग्गी. आइडियोफोन्स, चिमटा, गरहा एंड अंडेलू. नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक. क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक इंटरमिंगल्ड एंड अदर फॉर्म्स emerged that includes भजन, शबाद, कवाली, हवेली संगीत, गना संगीत एंड रविंद्र संगीत. भजन, these are devotional singing present in North India. Origin is given to Bhakti movement. Singing hymns. Stories of gods and goddesses, Mahabharata and Ramayana, accompanied by musical instruments like chimta, dholak and manjeera. Famous singer हैं अनूप जलोटा and अनुराधा पौडवाल. Shabad, with rise of Sikhism, they were sung in Gurudwaras. Guru Nanak was responsible for developing Shabad.
Holy text Guru Granth Sahib organized by chapters of rags and each chapter contains many shabad. Shabad, Sikhism sung in Gurudwaras. Guru Nanak responsible for developing. Holy text Guru Granth Sahib is organized by chapters of rags and each chapter containing many shabad. Bhajan, devotional singing present in North India. Origin is given to Bhakti movement, singing hymns, stories of gods and goddesses, accompanied by musical instruments like chimta, dholak and manjeera. Famous singer Anup Jalota and Anuradha Podwal. Shabad, rise of Sikhism, ये हमने देख लिया. Next is Qawwali, in praise of Allah or Prophet Muhammad. It is composed in single rag, written in Urdu, Punjabi and Hindi, performed in Sufi shrines. Musical instruments include tabla, dholak and harmonium. कौन फाया उसको ये उसी की याद आ रही है. आमिर खुसरो, ओरिजिन ऑफ कवाली विच इज डिस्प्यूटेड. अभी ओरिजिन इसका डिस्प्यूटेड है पर मोस्टली पीपल से आमिर खुसरो. कवाल्स, ताबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान. रविंद्र संगीत, मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक इन बंगाल. रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर को भी आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा दैट ये बंगाल में है. ठीक है, तो रविंद्र संगीत इज मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एलिमेंट्स एंड बंगाली फोक स्ट्रेन्स. It has more than 2K Rabindra Sangeet presently sung and performed. More than 2000 Rabindra Sangeet presently sung and performed. Next is Gana Sangeet or Gan Sangeet, sung in chorus and groups. It is about patriotic feeling. Generally, they try to bring social message. Vande Mataram, sung in praise of our nation. Haveli Sangeet, Rajasthan और गुजरात में. It is community practice of Pushti Marg Sampradaya as a way to salvation. हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात में community practice of पुष्टि मार्ग संप्रदाय as a way to salvation. निर्वाणा हमने देखा fusion of folk, classical music, intermingled other forms emerge. भजन, शबाद, कवाली, हवेली संगीत, गन संगीत एंड रविंद्र संगीत. रविंद्र संगीत बंगाल में, भजन डिवोशनल है, भक्ति मूवमेंट आपको याद रखना है. और शबाद Sikhism, each chapter contains many shabad. Each chapter contains many shabad. कवाली, आमिर खुसरो, इसका तो डिस्प्यूटेड है तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. Written in Urdu, Punjabi and Hindi, performed in Sufi shrines, praise of Allah और Prophet Muhammad. हवेली संगीत राजस्थान में एंड गुजरात में as a way to salvation. गन संगीत sung in chorus and groups, वंदे मातरम. रविंद्र संगीत बंगाल में. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवनाद, शुशीरा, गना एंड तटवाद्य. अवनाद आर मेम्ब्रोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव टू स्ट्राइक देम. ये हो गया मेम्ब्रेन, 2 साइड्स वाले भी होते हैं. सुशीरा, दीज आर एरोफोन्स. विंड इंस्ट्रूमेंट्स बांसुरी, शहनाई, पुंगी, फ्लूट एंड निनकिन्स. ये आपको याद करना पड़ेगा. निनकिन्स ये भूला जा सकता है, बाकी सब तो आप रिलेट कर लेंगे एरोफोन्स, विंड इंस्ट्रूमेंट, सुशीरा से, बट ये वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो निनकिन्स को अच्छे से याद रखना है. सुशीरा में आता है, इट इज़ अ एरोफोन और विंड इंस्ट्रूमेंट. फेमस फ्लूटिस्ट पंडित हरिप्रसाद. गन दीज आर नॉन ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्लूड्स मंजीरा, जलतरंग, घुंघरू एंड करताल. मंजीरा, घुंघरू, जलतरंग एंड करताल. मंजीरा इज as old as IVC. तटवाद्य, कॉर्डोफोन्स, दीज आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. कॉर्डोफोन्स, कॉर्ड हमने इसमें देखा. कॉर्डोफोन्स में आ जाएंगे वायलिन, सितार, गिटार, तानपुरा. स्वर्ण मंडल एंड गोटुवाद्यम. वीणा इज मोस्ट एंशिएंट एंड रिवर्ड इंस्ट्रूमेंट. मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक. गंधर्व महाविद्यालय, P. Palushankar in 1901 set up this school, गंधर्व महाविद्यालय. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस टू कमिंग जनरेशन, लाहौर एंड देन अब ये मुंबई में सिचुएटेड है. प्रयाग संगीत समिति 1926 में एट प्रयागराज. एडुकेशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. संगीत नाटक अकेडमी, फर्स्ट नेशनल अकेडमी सेट अप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स 1952 फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. This had ardent task of promoting enormous intangible heritage of India as demonstrated through music, dance and drama. संगीत नाटक अकेडमी का एम था
promoting enormous intangible heritage of India as demonstrated through music, dance and drama. Marist College of Music, premier institute for studying classical music है Marist College of Music. Vishnu Narayan founded it in 1926 at Lucknow. It is renamed as Bhatkhande Music Institute. Bhatkhande Music Institute. Spicy Mackey by Kiran Seth in 1977. Society for Promotion of Indian Classical Music and Cultural Amongst Youth. छठू प्रहार एनुअल क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई. एसोसिएशन ऑफ टाइम विथ राग्स. कम्युनिटीज रिलेटेड टू म्यूजिक लंघा और लंग ये हैं सिचुएटेड गुजरात और राजस्थान में हमको देखने को मिलेंगे. मेरासी राजस्थान. बॉल्स वेस्ट बंगाल. जोगी राजस्थान. मुरिया ट्राइब छत्तीसगढ़. सॉन्ग रेलो. कमर कम्युनिटी छत्तीसगढ़. इट इज़ अ मैरिज सॉन्ग इन छत्तीसगढ़. कमर कम्युनिटी sung by कमर कम्युनिटी. मोकन ट्राइब अंडमान एंड निकोबार एंड बाजीगर कम्युनिटी और गोवार कम्युनिटी पंजाब. सो हमने देख लिया है इंडियन म्यूजिक. हमने देख लिया एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूजिक. 3 मेन पिलर्स स्वर ताल एंड राग. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक हिंदुस्तानी में हमने देखा क्लासिकल सेमी क्लासिकल कार्नेटिक हमने देख लिया. इनके बीच के डिफरेंसेस हमने देख लिए. इसको में याद आपको रखना है कि दोनों में कॉमन फ्लूट एंड वायलिन है. क्लासिकल स्टाइल्स में हमने देखा ध्रुपद ख्याल एंड तराना. सेमी क्लासिकल में हमने देखा ठुमरी तप्पा एंड गज़ल. फोक म्यूजिक्स हमने देख लिए. दिस आर म्यूजिक ऑफ पीपल. दे आर डांस ओरिएंटेड. बॉल्स वनावन पांडवानी अल्हा लावनी. पाई सॉन्ग ओवी पानिहार मंड डांडिया पोवड़ा. कोंगजम परबा कोलट्टम मंडो एंड भावागीत. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हमने देख लिए. कॉर्डोफोन्स में आ जाएंगे थुम्बी टुनटुना डोटारा चिकारा दिलरुबा सरिंदा. एरोफोन्स में पुंगी अलगोजा टंगमुरी टिट्टी मशाक एंड गोगोना. मेम्ब्रेनोफोन्स में घुमोत इदक्का उदकाई संभाल तमक एंड डिग्गी. आइडियोफोन्स में चिमटा गरहा एंड अंडेलू. नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक हमने देख लिया. इसमें आ जाएंगे भजन शबाद कवाली हवेली संगीत गन संगीत एंड रविंद्र संगीत. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स अवनाद सुशीरा गाना एंड तटवाद्य. मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक कम्युनिटीज रिलेटेड टू म्यूजिक. लंघा गुजरात और राजस्थान में मुस्लिम ट्राइबल कम्युनिटी है. मेरासी राजस्थान. बॉल्स वेस्ट बंगाल. जोगी राजस्थान. मुरिया ट्राइब्स छत्तीसगढ़. कमर कम्युनिटी छत्तीसगढ़. मोकन ट्राइब अंडमान एंड निकोबार एंड बाजीगर कम्युनिटी पंजाब.